انرجی سیکٹر میں $5 ارب کی سرمایہ کے لیے 18 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی قائم۔ وزیر اعظم کی منظوری سے 18 رکنی کمیٹی کو 12 اہم ترین ٹاسک سونپ دیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں قائم کمیٹی کو 3 ہفتوں میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ وفاقی وزراء، وفاقی سیکرٹری، چیئرمین FBR بھی کمیٹی میں شامل۔ آئل اینڈ گیس کمپنیوں کے نمائندے بھی کمیٹی کا حصہ۔ کمیٹی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے مالیاتی نظام کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی گیس سیکٹر میں گردشی قرضے کو حل کرنے کے لیے تجاویز بھی تیار کرے گی۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ۔ DSP CTD علی رضا قاتلانہ حملے میں شہید فائرنگ کی زد میں آ کر پلازے کا سیکیورٹی گارڈ بھی دم توڑ گیا۔ موٹر سائیکل سواروں نے کریم آباد میں فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ پولیس اور CTD کی ٹیموں کا جائے وقوع کا دورہ، شواہد اکٹھے کیے۔ جائے وقوع سے 9mm کی 11 خول ملے۔ علی رضا گاڑی سے اتر کر پلازے کے دفتر میں داخل ہونے لگے تو حملہ آوروں نے فائرنگ کر دی۔ SSP سینٹرل علی رضا، DSP CTD انویسٹیگیشن تعینات تھے اور شہید SSP چودھری اسم کے قریبی ساتھی تھے۔ علی رضا کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہرین انچولی امام بارگاہ میں ادا کر دی جائے گی۔ تدفین وادی حسین قبرستان میں ہوگی۔ شہید علی رضا کی میت انچولی امام بارگاہ پہنچا دی گئی۔ اعلیٰ پولیس افسران بھی انچولی امام بارگاہ پہنچ گئے۔ افسوسناک واقعہ ہے، بدلہ ضرور لیں گے۔ موٹر سائیکل پر 2 ملزمان آئے، 11 فائر کیے۔ CTD کے تمام افسران کو دھمکیاں ملتی ہیں، جو کوئی بھی واقعے میں ملوث ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ علی رضا کی گاڑی بم پروف تھی۔ DIG CTD آصف اعجاز شیخ کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا DSP علی رضا کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ شہید کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ CTD کے DSP علی رضا نے شہادت کا بلند رتبہ پایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ بندرگاہوں میں جدید نظام اور آسان رسائی سے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی پورٹ ٹرسٹ دورہ۔ بندرگاہوں اور نیشنل فلیگ کیریئر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن پر تفصیلی گفتگو۔ برآمدی صنعت کی ترقی کے لیے بندرگاہوں کی ترقی انتہائی ضروری ہے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے حکومت ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے سمندری تجارت کا سب سے موزوں راستہ فراہم کرتا ہے۔ بندرگاہوں کی استعداد سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ بندرگاہوں پر جدید سکینرز کی جلد تنصیب یقینی بنائی جائے۔ سامان کی ترسیل کو مزید بہتر بنانے کے لیے لیر ایکسپریس وے کو بندرگاہ سے جوڑا جائے۔ نجی شعبے کی ترقی، کاروبار میں آسانی اور سرمایہ کاروں کو سہولت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہے، ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ وزیر اعظم کا کراچی بندرگاہ پر ساؤتھ ایشین پاکستان ٹرمینل کا دورہ۔ پورٹ ٹرمینل جدید طریقے سے چلایا جا رہا ہے، زیادہ تر آپریشن خودکار ہیں۔ پورٹ ٹرمینل پر جدید ٹیکنالوجی اور سکینرز نصب کیے جائیں گے۔ پورٹ ٹرمینل 35 لاکھ کنٹینر سالانہ کی نقل و حرکت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حکام کی پورٹ کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم کی ساؤتھ ایشیا ٹرمینل کے جدید آپریشن کی تعریف۔ وزیر اعظم کی تاج برادری کی کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ملاقات۔ بندرگاہ پر درپیش مشکلات اور شپنگ لائنز کی زیادتیوں بارے آگاہ کیا۔ تاجروں کا وزیر اعظم سے پورٹ کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کا پورٹ پر کلیئرنس میں تاخیر پر برہمی کا اظہار۔ متعلقہ اداروں کو پورٹ پر درپیش مسائل جلد حل کرنے کی ہدایت۔ بجلی سستی ہوگی تو برآمدات کو $6 ارب تک بڑھا دیں گے۔ ایکسپورٹ بڑھیں گی تو بیرونی قرض کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تاجروں کی وزیر اعظم سے گفتگو۔ ایکسپورٹرز پر فکس ٹیکس ختم کرنے پر تحفظات سے بھی شہباز شریف کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے اگلے ہفتے FECCI سے پورٹ پر بہتری کے لیے تجاویز مانگی۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو اوور بلنگ کی شکایت پر ادارے متحرک۔ نیپرا، FBR، FIA نے لیسکو کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا۔ رواں ماہ صارفین کو نئے پرو ریٹا کے ذریعے اضافی بل بھجوائے گئے۔ انکوائری رپورٹ آج مرتب کی جائے گی۔ افسران کے خلاف کارروائی کے لیے وزیر اعظم آفس کو رپورٹ بھجوائی جائے گی۔ جن صارفین کو پرو ریٹا بل ملے وہ واپس ہوں گے۔ 3,000 کی بجائے 8,000 روپے بل بھجوائے گئے۔ پرو ریٹا سسٹم کی منظوری کنسلٹنٹ منسٹری اور لیسکو انتظامیہ نے دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پرو ریٹا
प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की शिकायत का नोटिस, सार्फिन को ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ नाइंसाफी का अदाला किया जाए। प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरमाना फेल है, जिसके कतन इजाज़त नहीं। प्रोटेक्टेड सार्फिन पहले ही मुश्किलात का शिकार, ओवर बिलिंग से इनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। नए टैक्स लगाने से जुलाई में महंगाई का तूफान, बिजली, तेल, गैस समेत सब महंगा। पहले पेट्रोलियम मसनूआत और LPG महंगी हुई। एक हफ्ते में बिजली की कीमतों में 10 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया जा चुका है। अब शेख रनोश के निर्ख भी कंट्रोल से बाहर है। टमाटर ट्रिपल सेंचुरी के करीब है, 280 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। आलू 100 रुपये, लहसुन 400, अदरक 800 रुपये किलो, प्याज 130, गोभी 140, लीमू 400 रुपये फी किलो। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त पे 37 रुपये मजीद इजाफा, 421 रुपये किलो हो गया। दाल चना 65 रुपये महंगा, 285 रुपये किलो बिकने लगा। काले चने 70 रुपये इजाफे से 290 रुपये किलो हो गए। सफ़ेद चने 45 रुपये इजाफे से 290 रुपये किलो में फरोख्त। दाल मूंग 60 रुपये महंगी, 330 रुपये किलो हो गई। आटा भी सरकारी निर्ख से ज़ायद पर दस्तयाब। 10 किलो आटे के थैले के 900 रुपये निर्ख मुकर्रर, बाजार में 950 रुपये में फरोख्त जारी। मियांवाली पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इस्लामाबाद में F10 में घर पर छापा। उमर अयूब छापे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा। ATC सरगोदा ने मेरे काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की। फार्म 47 की हुकूमत अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की गिरफ्तारी के लिए बेताब। मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। किसी भी MNA को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर की इजाज़त की ज़रूरत होती है। हुकूमत नहीं चाहती कि हम महंगाई और अवाम मसाइल पर बात करें, उनकी करप्शन बेनकाब करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। और साबिक वज़ीर दिफा पुराने साथियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं। बानी PTI हो या कोई भी हो, गवाही के लिए बुलाया गया तो हक की गवाही दूंगा। जो मेरे सामने वाक़यात पेश आए सब बताने के लिए तैयार हूँ। अली अमीन भड़के मारते रहते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। साबिक PTI रहनुमा परवेज़ खट्टक की नौशहरा में गैर रस्मी गुफ्तगू। सदर ममलिकत 3 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी की मुतअद्दिद मुलाकातें शेड्यूल। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी पंजाब में पार्टी की तंजीम नौ का जायजा लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट जारी कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजी और ज़रूरी इंतजामी इक़दाम की हिदायत। नकासियात के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स वासा को मुतहर्रिक रहने का हुक्म। बारिशों के पानी के निकास से मुतल्लिका अफसरान फील्ड में रहें। किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PTMA के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शहरियों की जान माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। नशीबी इलाकों के अवाम के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। मरी, गलियात, करक, मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। हरीपुर में बारिशों से राब्ता सड़कें बंद। फैसलाबाद में मुतअद्दिद शाहराहें नशेबी इलाके पानी में डूब गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। M9 मोटरवे। नूरियाबाद में हल्की बारिश। मुल्तान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ बेटी दम तोड़ गईं। पंजाब और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत ANF हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। मोहसिन नकवी ने ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर ANF को सराहा। ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन के लिए जामे प्लान तलब। सरकारी और निजी तालीमी इदारों और हॉस्टल्स में मनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भरपूर कार्रवाई का फैसला। मनशियात की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भी प्लान तलब।
वज़ीर दाखिला की ANF को साइबर ड्रग कंट्रोल मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत। मुनशियात और आइस की लानत ने कई खानदान तबाह कर दिए। मुनशियात के बढ़ते रुझान पर काबू पाने के लिए फौरी कसीरुलजहती इक़दाम करना होंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की यादगार शोधा पर हाजिरी फूल चढ़ाए। फातिह खानी की NF हेडक्वार्टर्स के लाइन में पौधा भी लगाया। शहर कायद के बासी बिजली की आंख मुचोली से तंग। पावर हाउस लिंक सेंटर पर अहले इलाका का बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने शाहरा के दोनों ट्रैफिक को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी के मकीन पानी की किल्लत पर सड़कों पर आ गए। गुलशन इकबाल से आयशा मंजिल जाने वाली रोड पर ट्रैफिक जाम। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज करेंगे। अवाम की बका हुक्मरानों तक नहीं पहुँच रही। किसी सियासी जमात के एजेंडे में अवाम शामिल नहीं। जुल्म का निज़ाम मज़ीद नहीं चलेगा। पाकिस्तान भर में अवामी राब्ता मुहिम को तेज़ कर रहे हैं। अशराफिया की मुराद को ख़त्म करना चाहिए। दुबई लीक्स की फ़ाइल दबा दी गई है। कोई उनसे मनी ट्रेल लेने की बात नहीं करता। मीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर फर्द के पास जान बचाने की ताकत है। खून का अतिया देकर ज़रूरतमंदों को महफूज खून फराहम किया जा सकता है। तमाम लोग इस नेक मकसद और ज़िंदगी बचाने के लिए खून का अतिया दें। खून की अदम दस्तियाबी से हर साल मुतअद्दिद जानें चल जाती हैं। मुल्क की 24 करोड़ आबादी में सिर्फ 10% लोग रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया देते हैं। हर सेहतमंद शख्स को साल में एक बार खून देना चाहिए। मिलकर एक सेहतमंद और मुस्तहकम पाकिस्तान बना सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। PTI रहनुमाओं की मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज आमिर मुगल, अली बुखारी, शेब शाहीन की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत समाअत करेंगे। शफकत, मोहब्बत, रहम दिली के पैकर, दुखी इंसानियत के खादिम, आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन अब्दुलसत्तार ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। अब्दुलसत्तार ईदी ने बिला तफरीक अपने हमवतनों की बेलौस खिदमत की। अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। अब्दुलसत्तार ईदी एक ऐसा इदारा छोड़ गए जो उनके बाद भी इंसानियत की फलाह के लिए काम कर रहा है। भारत बांग्लादेश नेपाल में शदीद बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 35 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 16 अफराद हलाक। शमाली मशरकी रियासत आसाम में शदीद सैलाब। हज़ारों घर ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब। सड़कें पानी में बह गई। राजस्थान और यूपी समेत भारत की मुतअद्दिद रियासतों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। बारिशों और सैलाब से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। डेंगू वबा फूट पड़ी। नेपाल में मानसून की बारिशों से सैलाब, लैंडस्लाइडिंग। 11 अफराद हलाक, 12 जख्मी, 8 लापता। बांग्लादेश में बारिशें और सैलाब हादसात में 8 अफराद हलाक, 20 लाख अफराद मुतासिर। चीन में हवा के बगोलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। ताकतवर बगोलों से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। घरों की छतें भी उड़ गईं। 2800 से ज़ायद घरों को नुकसान।